میرے محترم ویورز میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے بہلول دانا کا نام نہ سنا ہو۔ یہ بڑا عجیب و غریب کردار تھا، اور خاص کر خلیفہ ہارون رشید کے دور میں۔ خلیفہ تو ویسے کتابوں میں لکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو 4 خلفاء تھے ان کے بعد بادشاہت آ گئی۔ ہاں، 2.5 سالہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جس کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج بہلول کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کا دماغ چلا ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ ایک دفعہ بہلول دانا کو دربار میں بلایا گیا۔ یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلوں کہ بہلول دانا اصل میں ہارون رشید کا رشتہ دار تھا۔ رشتہ داری دور پار کی تھی، لیکن لوگ جانتے تھے کہ وہ خلیفہ کا رشتہ دار ہے۔ بہرحال بہلول دانا لاٹھی ٹیکتا ہوا دربار میں آیا تو اسے دربار خالی محسوس ہوا۔ وہ جا کر سیدھا تخت شاہی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر ہی بیٹھا تھا کہ ملازم آ گئے، درباری آ گئے۔ انہوں نے جب اس بزرگ کو دیکھا گندے کپڑے اور تخت پر، تو بغیر پوچھے جو محافظ تھے انہوں نے جو ہے وہ کوڑے رسید کرنا شروع کر دیے۔ اسے ملازم کوڑے مار رہے تھے اور وہ آگے سے کہہ کے لگا رہا تھا کہ اچانک ہارون رشید دربار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ملازمین کو روکا، لیکن اس وقت تک بہت زیادہ کمر زخمی ہو گئی تھی بہلول کی۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ تم نے پہلی غلطی یہ کی کہ تخت پر بیٹھے، اور سمجھ یہ اس کی نہیں آ رہی کہ وہ تمہیں کوڑے مار رہے تھے اور تم آگے سے کہہ کے لگا رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہلول نے پھر کہہ کر لگایا، اور اس نے کہا کہ ہارون، اندازہ کرو کہ میں 5 منٹ تک اس تخت پر بیٹھا اور اگلوں نے کوڑے مار مار کر میری کمر جو ہے وہ ادھیڑ دی۔ تم اپنا خیال کرو، تم کتنے عرصے سے اس تخت پر بیٹھے ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک دن تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ایک بار پھر بہلول کو، یہ دوسرا واقعہ ہے، دربار میں بلایا گیا، کیونکہ اکثر جو ہے جب بھی خلیفہ یا بادشاہ بور ہوتا تو بہلول کو بلواتا تھا دربار میں۔ بہلول نے بغیر کسی جو ہے نا وہ پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے جا کر وہ خلیفہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ اب خلیفہ کو کافی ناگواری گزری، کیونکہ جسم سے بو آ رہی تھی اور عجیب و غریب کپڑے تھے، بال جو ہے وہ مٹی میں اٹے ہوئے تھے بہلول کے۔ بہرحال خلیفہ کچھ نہ کر سکا۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تم پہ ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہیں 1000 اشرفی دوں گا۔ بہلول نے کہا کہ میں نے 1000 اشرفی کا کیا کرنا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ بہلول نے کہا کہ مجھے مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ مکھیوں کو آرڈر کریں کہ وہ مجھے تنگ نہ کیا کریں، وہ مجھ پر بیٹھتی ہیں۔ درباری زیر لب مسکرانے لگے، اور خلیفہ نے جھنجھلا کر کہا کہ وہ بے وقوف انسان، کیا مکھیاں میرا حکم مانتی ہیں؟ کیا مکھیوں پر میرا حکم چلتا ہے؟ تو بہلول نے کہہ کر لگایا، اور بہلول نے کہا لعنت ہے ایسی بادشاہت پر کہ جس کا حکم جو ہے وہ مکھیاں نہیں مانتی، تو بادشاہت کیسی اور دربار کیسا اور یہ شاہی خلت کیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मेरा नाम महमूद नियादी है। 7 बड़े आदम जानते हैं, आप नहीं जानते तो ये आपकी लाइल्मी है। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 5 अक्टूबर 2025 है और दिन है इतवार का। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की छुट्टी है, मैं आप लोगों की समा खराशी करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन आप मज़ेदार जो है वो नाश्ता करें और रोटी शोटी खाएं। तो रोटी शोटी खाने के बाद आपको टाइम लगे तो आप जो है वो वीलॉग भी सुन लें। लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि फॉर्म 47 का जो वज़ीर आज़म है, जो लेला है, जो अर्दली है, जो चपड़ासी है, उसने कहा कि मैं जापान में गया तो मुझे आवाज़ आई मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एहतजाज कर रहे हैं, तो आपके घर से भी यही आवाज़ आनी चाहिए और इस निज़ाम को लाने वालों पर, फॉर्म 47 देने वालों पर, इस जाली हुकूमत को कायम करने वालों पर थू थू ये करके आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि बाहर हमने आना नहीं है, हमें मना है, हमें डॉक्टर ने मना कर रखा है कि एहतजाज नहीं करना, तो आप ये कर लें। अगली दरख्वास्त ये है कि आप चैनल पे नए हैं तो स्टे करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बहुत प्यारी और वज़ादार फैमिली का हिस्सा बने, यूट्यूब फैमिली का। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें, आप भूल जाते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आज आपको कमेंट भी बताना है कि आपने कमेंट क्या करना है। और इसके अलावा आखिरी दरख्वास्त ये कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। आज एक 73 साला खूबसूरत शहजादे की सालगिरह है और उसका नाम है इमरान खान। आज इमरान खान की सालगिरह है। मेरी तरफ से, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली की तरफ से खान साहब को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आज खान साहब 73 साल के हो गए हैं और हमारी अल्लाह पाक से झोली उठाकर दुआ है कि अल्लाह पाक इमरान खान को लंबी ज़िंदगी दें, अल्लाह पाक इमरान खान को सेहत दें, और ताकि वो एक दफ़ा फिर बाहर आएँ और वो कौम की उम्मीद दें। हालांकि वो जेल में बैठे हैं, लेकिन 80% पाकिस्तानियों को जो है वो उनसे उम्मीदें हैं। वो उम्मीद का नाम है, वो आस का नाम है। तो अल्लाह हमारी ये उम्मीद जो है वो कायम रखे। आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मेरा चैनल, उस पे आप जो है वो कर दें, इमरान खान को सालगिरह की मुबारक दे दें। यहाँ पे 1-2 किस्से आपके सामने लाजमी रखना चाहूँगा। पहला किस्सा ये है, ये इसके रावी हैं सिद्दीक जान। सिद्दीक जान कहते हैं कि जो है वो एक PTI के एक साहब बहुत बड़े लीडर, जो 9 मई से पहले वो बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन 9 मई के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो है वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए, अपना दीन तब्दील कर लिया और आजकल बड़े मज़े में हैं। उस लीडर ने सिद्दीक जान को वाक़या सुनाया। वाक़या ये था ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं एक बाहर के मुल्क में गया, यूरोपीय मुल्क था, वहाँ पे मैंने कुछ ख़रीदारी की तो दुकानदार मुझे कहता है कि आर यू इंडियन, क्या तुम इंडियन हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो उस शख्स ने फ़ौरन कहा कि इमरान खान का क्या हाल है, इमरान खान कब आज़ाद होंगे? तो वो शख्स कहता है मैं नहीं जानता कि इमरान खान कब आज़ाद होंगे या नहीं, लेकिन वो लीडर कहते हैं कि उस बंदे की मोहब्बत देखकर इमरान खान से मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल को जेब से निकाला और तस्वीर दिखाई जो मेरी खान साहब के साथ थी, क्योंकि वो किसी दौर में PTI के लीडर थे। सिद्दीक जान कहते हैं कि आप यकीन करें कि उस यूरोपीय दुकानदार ने उस PTI के लीडर का माथा चूमा और उसकी आंखें चूमी कि तुमने इन आंखों से इमरान खान को देखा है। फिर वो लीडर कहते हैं कि जितना मैंने सामान लिया था, यानी बहुत सारा, उस पर टोटल जो है वो 50% उस दुकानदार ने डिस्काउंट दिया इमरान खान के नाम पे। यानी वो जो है अगर 100 रुपये बनता था तो उसने 50 रुपये लिए।
फिर सदीक जान कहते हैं कि मैंने एक बहुत बुजुर्ग मोहतरम बुजुर्ग से पूछा कि आपने भुट्टो साहब को देखा था, आप क्या समझते हैं कि भुट्टो साहब मकबूल हैं या इमरान खान मकबूल हैं? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता जितने इमरान खान मकबूल हैं। भुट्टो साहब सोच भी नहीं सकते थे जितने इमरान खान मकबूल हैं और जितना लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। रात को दीवाने केक लेकर अडयाला पहुंच गए, रात को दीवाने केक लेकर ज़मान पार्क पहुंच गए। कराची में एक जमे गफ़ीर था, पेशावर में एक जमे गफ़ीर था, लोगों ने सड़कों पे केक काटे, लोगों ने सेलिब्रेट किया और पूरी दुनिया में इस वक्त जो ट्विटर को फाड़ रहा है वो है जो है हैप्पी बर्थडे टू IK। इसके अलावा इमरान खान के बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने जो है वो 73वीं सालगिरह पे अपने बाप को मुबारकबाद दी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जो मेरे वालिद हैं वो अपनी फैमिली के बगैर, अपने डॉक्टर्स के बगैर वो जेल में हैं, लेकिन वो हक पर खड़े रहेंगे, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आखिरी वाक़या आपको सुनाना है इल्लामा सैयद नासिर अब्बास का। इल्लामा सैयद नासिर अब्बास वो शख्स हैं जो करबलाई हैं और उन्होंने साबित किया है कि वफा किसे कहते हैं और वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। इल्लामा साहब फरमाते हैं कसम उठाकर कि नजफ़े अशरफ में मैं गया, वहाँ पे मैंने लोगों को देखा कि वो रो रो कर दुआएं कर रहे थे। फिर मैं करबला आया, करबला में मैंने देखा लोग रो रो कर दुआएं कर रहे थे। फिर अरबईन पे मैंने लोगों को रो रो कर दुआएं करते देखा इमरान खान के लिए। इमरान खान खुशकिस्मत है जिसके मुकद्दर में इतनी मोहब्बतें आई हैं। आप लोग कई दफ़ा देख चुके हैं कि रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग दुआएं करते हुए अपनी वीडियो जो है वो शेयर करते हैं, काबे का तवाफ़ करते हुए वो जो है इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं और वो वीडियो शेयर करते हैं। तो एक बार फिर हम 73 साला खूबसूरत और नौजवान शहजादे को जो है वो सालगिरह की मुबारक देते हैं। आज आपने कमेंट्स का रिकॉर्ड तोड़ देना है, जो जो सुने वो इमरान खान को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद दे। अब कुछ आते हैं दीगर खबरों की जानिब। 28 नवंबर 2025 ये वो दिन है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अब फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि वो पाकिस्तान के चीफ बने, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। उनकी क़यादत में ये अलहदा बात है कि एयरफोर्स ने तैयारे गिराए लेकिन क़यादत वो कर रहे थे, हम उनके मशकूर हैं। अब 28 नवंबर 2025 को उन्होंने घर जाना है और उनको घर जाना चाहिए, नई क़यादत को आना चाहिए, नई क़यादत को मौका देना चाहिए, क्योंकि हमें जो 5 लोग पीछे लाइन में हैं जिसमें पहले नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया साहब हैं, इसके अलावा शाह साहब हैं, इसके अलावा गुलरेज़ एहसन साहब हैं, इसके अलावा इम्तियाज़ शाह साहब हैं, तो हमें उन पे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को मज़ीद बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। या जिसका भी नंबर आएगा सारे कोर कमांडर जो है वो इस बात के अहल हैं। अगली खबर प्रोपेगेंडा किया गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कहा कि जी अब मेरा पैगाम वो नौरीन न्याजी दिया करेंगी, अलीमा खान नहीं दिया करेंगी, जो गंद अली अमीन गंडापुर ने घोला था। तो अब उसकी तरदीद आ गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि मैंने कोई पैगाम नहीं दिया, मैंने कोई बात ऐसी नहीं की, इमरान खान का पैगाम वो अलीमा खान ही देंगी। तो ये बात उन्होंने कन्फर्म कर दी। उसके बाद पहली दफ़ा अभी मैंने नाम लिया सैयद इल्लामा नासिर अब्बास साहब का, उन्होंने चार्जशीट किया है गंडापुर को। यानी अब जो है वो हर कोई जानता है कि गंडापुर वो इमरान खान के वज़ीर आला नहीं है, वो नामालूम अफराद के वज़ीर आला हैं। तो इल्लामा नासिर अब्बास ने शक और शुबे का इजहार किया है कि उन्हें गंडापुर की सियासत पर और उनको गंडापुर के तर्ज सियासत पर एतराज़ है।
उसके बाद एमल वली खान, ये झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि एमल वली खान ने सेनेट में तकरीर की, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि किस दुनिया का किस मुल्क का आर्मी चीफ होता है जो सेल्समैन की तरह ब्रीफ केस खोलकर अपनी चीज़ें दिखाता है अमेरिकी सदर को, और वटा जोक उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एमल वली खान की तमाम जो है वो सिक्योरिटी वो वापस ले ली गई। न सिर्फ वफाक ने वापस ली बल्कि अली अमीन गंडापुर ने आमीन कहते हुए और नखरे उठाते हुए उन्होंने भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली है। एमल वली खान से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आप जानते हैं कि इस ख़ानदान को दहशत गर्दों से कितना ख़तरा है। पहले आपने बिलोर ख़ानदान देखा, मियाँ इफ्तिखार देखे। बहरहाल एमल वली खान कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो पंजाब है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है, क्योंकि आटे पे पाबंदी लगी है कि आप KPK नहीं भेज सकते। तो एमल वली कहते हैं कि फिर बिजली क्यों जाए पंजाब में और गैस क्यों जाए पंजाब में। बहरहाल एक और इंकशाफ हुआ है, ये सारे जो है ना किस तरह मिल के पाकिस्तान को खा रहे हैं। एमल वली खान वो मिनिस्टर नहीं है, लेकिन तलाल चौधरी ने इंकशाफ किया है कि वो मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। अब सिंपल सेनेटर हैं और अपोजिशन के हैं और वो मिनिस्टर इनक्लेव में उन्होंने भी बंगला काबू किया हुआ है। जिस तरह फजल रहमान 44 लाख की लस्सी पी गया और हमेशा बंगला नंबर पता नहीं 20 था कि 40 था उसमें रहते थे, तो एमल वली ने भी नीचे दबाया हुआ है बंगला। बहरहाल इस मामले में ये सारे एक हैं, इस मामले में ये सारे नंगे हैं इस हमाम में। बहरहाल उनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है और अल्लाह हक का खुदा है। मीर हैदर खान होती ये 5 साल वज़ीर आला रहे हैं KPK के और इनके दौर को अच्छा दौर कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ख़ासकर इन्होंने तालीम के मैदान में अच्छा काम किया और KPK को यूनिवर्सिटीज़ दी। नौजवान आदमी थे। बहरहाल तलाल चौधरी के बयान पर वो रद्द-ए-अमल देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैं घर की सीट हारा हूँ, क्योंकि हार गए थे ये इलेक्शन। फिर उन्होंने सियासत ही छोड़ दी थी, ANP छोड़ दी थी। ये असफंजार वली के भांजे हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि मैं कभी भी अपनी घर की सीट न हारता अगर मैं PDM में तुम लानती लोगों को सपोर्ट न करता। ये लानती मैंने डाला है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि मैंने तुम लोगों को सपोर्ट किया, इमरान खान की हुकूमत गिराने में मदद की, लिहाजा मैं घर की सीट हार गया। वो हक का खुदा है, वो सच का खुदा है। अब देखें अख्तर जान मेंगल मुकर गए, महमूद खान चकजई मुकर गए, मीर हैदर खान होती का अब यानी इमरान खान खुद जेल में है, बोल भी नहीं रहा और उसके मुखालफिन किस तरह बोल रहे हैं। राजा फारूक हैदर ये जो है ना वो नून लीग के करता धरता हैं। 1-2 दफ़ा कश्मीर के वज़ीर आज़म भी जो है ना वो रह चुके हैं। इन्होंने तहरीक से पहले कहा कि आम लोग क्या होते हैं, आम लोगों की हैसियत क्या होती है, ये उन्होंने फरमाया। अब वो फरमाते हैं कि अब हमारी सियासत क्या रह गई है, हमारी सियासत तो बढ़ गई है। और आपकी सियासत बढ़नी थी जनाब, जब लोग अपनी पे आ जाएं, जब कौम अपनी पे आ जाए तो फिर यही होता है। PTI इसका, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जितनी शान से जनाजा निकला है, जितनी धूम से जनाजा निकला है कश्मीर से, हालांकि ये चाचे मामे थे कश्मीर के, लेकिन आम बंदों ने जो इनका हाल किया है, इनका कोई लीडर डर की वजह से जो है वो एहतजाज में नहीं गया, लोगों में नहीं गया कि लोग कपड़े उतार देंगे, लोग पैंटे टांग देंगे इस्लामाबाद की पुलिस की तरह। बहरहाल जो है ये राजा फारूक हैदर साहब, ये इनका जो है ना एक्चुअली माइंड है, यानी इनका जो है वो माइंड है जो उन्होंने डिस्क्लोज किया है। आज आपके सामने एक जो है ना रीबॉर्न ये इन्होंने ट्वीट किया है, बहुत ज़बरदस्त ये ट्वीट करते हैं। इन्होंने ज़रा आपके नाम एक पैगाम भेजा है, मैं एज़ इट इज़ वो पैगाम आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आपने खुद कर लेना है। ट्वीट शुरू होता है, ओए पाकिस्तानियों क्या जिंदगी है तुम्हारी, तुम में से कुछ के घर में माँ बाप बीमार हैं, तुम उनकी दवाई नहीं ले सकते, कोई शक नहीं है, रोज़ाना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तुम में से कुछ अपने मनपसंद स्कूलों में अपने
बच्चे, दूसरों के नहीं, अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते। ये रिबॉर्न कह रहे हैं। तुम में से कुछ जो है वो ये तुम में से बहुत सारों का अपना मकान ही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी और अपने बच्चों की खुराक पर भी समझौता किए बैठे हैं। ओए पाकिस्तानियों, तुम में से कुछ अंदर ही अंदर जहर घोलते हो। तुम्हारा नालायक रिश्तेदार या क्लास फेलो सिफारिश या रिश्वत के जोर पर सरकारी नौकरी कर रहा है। तुम जिंदगियां घसीट रहे हो। तुम्हारी तालीम, तुम्हारी सोच तुम्हें मुआशरे में इज्जत नहीं दिलवा सकती, क्योंकि तुम एक घटिया मुआशरे में जिंदा हो। तुम छोटी छोटी ख्वाहिशों और छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते हो। ओए पाकिस्तानियों, तुम पसीने में शराबूर मोटरसाइकिल पर बैठे वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए अपने टैक्स के पैसे से बनी सड़क पर कितनी कितनी देर रुके रहते हो, और उनके लिए रुके रहते हो जो आप जानते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, नौसरबाज हैं। तुम्हारे टैक्स से तनख्वाह लेने वाले पुलिस वाले तुम्हें जानवरों की तरह मुखातिब करते हैं। कभी पुलिस से आमना सामना हो जाए, वो किस तरह मुखातिब करते हैं। तुम जिस दफ्तर में जाते हो तो जाते हुए कोई सिफारिश ढूंढते हो या अपनी कोई ख्वाहिश कुर्बान करके पैसे देकर अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो सरकारी एहलकार हैं वो दफ्तर में आने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। ओए पाकिस्तानियों, तुम्हारी अदालतें तुम्हें इंसाफ नहीं देती। तुम्हारे हस्पताल तुम्हें इलाज की सहूलतें नहीं देते। तुम्हारे सरकारी मुलाजिम तुम्हें इज्जत नहीं देते। तुम्हारे वोट की कोई कदर नहीं करता। ओए 21वीं सदी में गुर्बत, नाइंसाफी, जहालत, पसमानदगी और कसम पुरसी 21वीं सदी में। इलॉन मस्क के उस दिन आपको अहसास से बताया कि एक बंदे के पास 500 अरब डॉलर्स हैं। एक बंदे के पास। दुनिया कहाँ चली गई? आजकल दुनिया में मोबाइल आंखों के इशारों पर चल रहे हैं। एलईडीज आंखों के झपकने पर ऑन होती हैं और बंद होती हैं। ओए पाकिस्तानियों, जरा सोचो, क्यों मरे जा रहे हो? कौन तुम्हें मार रहा है? कौन तुम्हें खा रहा है? कौन है वो? कौन? इस पे आप लोगों ने सोचना है कि आपकी जिंदगी में जहर किसने घोला है और कौन आपको जो है वो खुलकर जीने नहीं दे रहा। उसके बाद यानी आप हैरान होंगे, और हैरान इस बात पे होंगे कि 8 सितंबर 2025 FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ये 2 टन 2000 किलोग्राम की पहली खेप मादनियात की अमेरिका में पहुंचा देती है। पता है किसी को? उसका बिल कितना बना, उसका बिल किसको मिला? FWO फौज का इदारा है, GHQ कंट्रोल करता है। और सबसे जो खतरनाक बात वो ये कि इसमें ऐसी मादनियात थी जिन पर चीन ने अमेरिका को बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। इसमें बैटरियों और मिसाइलों के पुर्जे जो है वो जोड़ने वाली मादनियात थी, जिनके नाम भी हमें नहीं आते। अगले वीलॉग में कोशिश करूंगा आपको नाम बताने की। अब इसका मतलब है वो मिसाइल जो हम पे गिरेंगे, इजराइल गिराएगा, भारत गिराएगा, क्योंकि जाहिर है अमेरिका बेचेगा आगे। उसमें हमारी किसी दौर में हमारा तेल होता था। शाह फैसल कहते थे, भुट्टो कहते थे, गद्दाफी कहते थे, इसके अलावा जो है वो सद्दाम कहते थे, यासिर अरफात कहते थे कि जो टैंक हम पे हमला करते हैं, जो जहाज़ हम पे बमबारी करते हैं, उनमें तेल हमारा है। और वाकई तेल अरबों का होता था। ये बात कहने पे एक एक का क्या अंजाम हुआ वो आपके सामने है। अब ये मिनरल्स पे गेम आ गई है।
اور ایک پسنی میں اڈا دیا جا رہا ہے. جہاں پہ اڈا دیا جا رہا ہے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے ایبسولوٹلی یس سر. وہاں سے 70 میل کے فاصلے پر چین ہے اور 100 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ ایران ہے. یہ حالانکہ گوادر میں بندرگاہ تعمیر کروائی چین سے اور معاہدہ کیا تھا کہ یہ تجارتی مقاصد کے لیے ہوگی. اس سے تھوڑے سے فاصلے پر پسنی میں جو ہے نا وہ اڈا دیا جا رہا ہے. اور فائنینشل ٹائمز نے مزید جو ہے وہ بم پھوڑا ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ گھر جائیں؟ اس لیے گھر جائیں کہ ان کے خلاف 2 بل وہ امریکی کانگریس میں موجود ہیں. وہ بار بار فیلڈ مارشل کو وہ بل دکھاتے ہیں، پابندیوں کے بل دکھاتے ہیں. کوئی نیا بندہ آئے جس پہ کوئی کیس نہ ہو، جو صاف ستھرا ہو. میں بات کر رہا تھا فائنینشل ٹائمز کی. فائنینشل ٹائمز کہتا ہے کہ یہ باجوہ کے دور میں مذاکرات کا آغاز ہوا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تیار ہو گئی یہ سارا کچھ کرنے پہ. اور وہاں پہ پھر HBO کے نمائندے کو جب یہ خبریں ملی، سنگن ہوئی، تو انہوں نے ٹیسٹر لگایا وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم سے سوال کروایا گیا کہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو کیا آپ ان کو اڈے یا آپ ان کو جگہ دیں گے؟ تو کیا جواب آیا تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. جس نے پوری دنیا میں ڈنکے بجا دیے، جس سے سارے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے، سارے پاکستانیوں کی جو ہے وہ چھاتیاں چوڑی ہو گئی. سارے پاکستانیوں کو ایک عجیب سا نشہ ایبسولوٹلی ناٹ میں ایک عجیب سا نشہ تھا، کیونکہ نہ کرنے میں اور طاقتور کو نہ کرنے میں، ظالم کو نہ کرنے میں ایک عجیب نشہ ہے. اس نشے سے منصور حلاج واقف ہے. اس نشے سے ابھی نام لیا بہلول دانا جو ہے نا وہ واقف ہے. اور خاص کر اس نشے سے حسین ابن علی علیہ السلام وہ واقف تھے. جب وہ جا رہے تھے تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے بابا سے پوچھا کہ بابا ہم حق پر ہیں؟ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا 100% میرا پتر ہم حق پر ہیں، تمہیں کوئی شک ہے؟ تو شہزادہ علی اکبر نے فرمایا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ کرنے والے اس نشے سے واقف ہیں. اور وہ جس نے نہ کی تھی، یہ بڑا پرانا منصوبہ ہے، بڑا پرانا. صابر شاکر نے کہا ہے کہ یہاں پہ امریکہ کو، چائنا کو نو، امریکہ کو ایبسولوٹلی یس. جس نے نشہ کیا ایبسولوٹلی ناٹ کا، اور وہ جو ہے اڈیالہ میں سڑ رہا ہے. آج اس کی 73rd جو ہے وہ برتھ ڈے ہے. کم از کم آپ اس کو مبارک دے سکتے ہیں. آپ کو کوئی کالا ڈالا اٹھانے نہیں آئے گا. اور آخر میں آپ کو کہوں گا، اوے پاکستانیوں، کون اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کو، آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اللہ کرے آپ کی چھٹی بہت خوشگوار گزرے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.